Hello, welcome to class. Good afternoon, everybody. Today we will study about the census and sample method of collection of data. In part 7, myself, Suman Bharadwaj, tell you about the sample methods of collection of data and how one person can reliable on the sample of methods of collection of data. In the previous videos we have completed about the types of sampling of methods, that is completed till part 6. Today we will start the part 7 of this chapter. Let's start with the topic reliability of sampling data. Reliability means on which we can trust, on which we can believe that accurate result is given. Okay, accurate result has been given in the universe having all the characteristics. The reliability of sampling data means that characteristics of the universe are fully represented by the sample. Okay, in the universe there are so many people, and whatever characteristics involved in the samples, people trust on that and believes that accurate information is given. Accurate means bilkul sahi, on which people can trust, believe, and reliable and dependent. It depends mainly on the following factors. Some factors are dependent. Factors means in Hindi we say ghataks. Factors means ghatak. What are the factors responsible so that people of the universe can believe that the data present in the sample is 100% correct? First point is the size of sample. Size, first about the size. Sample may be small, medium or large. Okay, जब when we are talking about the size of sample, okay, जब हम size की बात करते हैं तो size आपका मीडियम भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है. ठीक है. Reliability of sampling depends on the size of the sample. It means whether the sample size is small or big or medium. If it is very small, अगर ये बहुत छोटा है, it will fails to represent the population. अगर size of sample is very small, तो हमारे पूरे यूनिवर्स की पॉपुलेशन के बारे में हमें डाटा ठीक से नहीं मिल पाएगा. Accordingly, the conclusions would lack reliable. Lack means जिसमें कमी दर्शाई जाए. Okay, shortage. ठीक है, जब हम रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें कुछ कमी रह गई है जिसकी वजह से पीपल ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, डिपेंड नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल. तो हमें क्या किसका सिलेक्शन करना है? लार्ज और मीडियम को लेकर. Now, I hope you understand, children, size of sampling method. Now, next topic of this मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग. हमने मेथड्स के बारे में स्टडी किया था पहले, जैसे आपका रेंडरिंग सैम्पल्स हैं, रॉन रेंडरिंग सैम्पल्स हैं, सिंपल मेथड्स हैं, लॉटरी मेथड्स हैं. ठीक है. द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग. मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में क्या देखेंगे? इफ़ द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज़ नॉट सिंपल, अगर सिंपल नहीं है और एग्जीक्यूटिव्स नहीं है, इट इज़ एडुकेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, जो कि पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से दर्शा नहीं रहा है. कॉन्सिक्वेंटली मीन्स जिसका रिजल्ट निकल कर आता है, हिंदी में जिसे हम परिणाम कहते हैं, परिणाम. द रिजल्ट विल नॉट बी डिपेंडेबल, तो पीपल उसके रिजल्ट पर विश्वास नहीं करेंगे. दिस इज द सेकेंड मेथड. ओके, फर्स्ट मेथड इज द साइज ऑफ सैंपल. फर्स्ट मेथड इज योर साइज, सेकेंड मेथड इज योर मेथड ऑफ सैम्पलिंग.
Now we will study about the third method, bias of correspondence and enumerators. ठीक है, हमने पहले भी इस वर्ड के बारे में पढ़ा था। बाइस, इसका मतलब क्या होता है, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं की जा रही है, सबको इक्वल कंसीडर किया जा रहा है और फिर उसके बेस पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। अब एक और वर्ड आया है यहाँ पर, एनुमरेटर्स। एनुमरेटर्स मतलब क्या है, जो भी इन्वेस्टिगेटर्स है वो डोर टू डोर गया है और उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, रिटन में या वर्बली रिकॉर्ड मेंटेन किया है। Now personal bias of the correspondence and the enumerator should be less and possible। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन एनोमरेटर्स कलेक्ट कर कर लाए हैं पॉपुलेशन से, चाहे वो पॉपुलेशन आपकी रूरल की हो, रूरल मीन्स गांव की हो, अर्बन की हो, शहरों की हो, चाहे वो रिकॉर्ड मेंटेन कर कर लाते हैं। बट जो भी उनको डाटा जब वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लोग उनको सही इंफॉर्मेशन बता कर दें। तो इसीलिए क्या करते हैं, लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। अदरवाइज रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल इज़ बाउंड टू सफ़र। इसीलिए क्या करना पड़ता है, तो उसे सफ़र करना पड़ता है रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल को। ठीक है, पीपल आर नॉट बिलीविंग। फोर्थ पॉइंट देखिए, ट्रेनिंग ऑफ एनुमरेटर। जो भी आपके रिस्पोंडेंट्स हैं, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं पब्लिक से, ठीक है, तो उनको इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, हमारी पॉपुलेशन जहाँ पर ज़्यादा है या जहाँ पर कम है, कि आपको किस तरीके से डाटा कलेक्ट करना है। तो उनसे ट्रेनिंग दी जाती है पीपल को, ताकि वो परफेक्ट हो जाए उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ताकि सेंसस मेंटेन कर लिया जाए। रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, अब कोई अच्छी ट्रेनिंग जिसने कर रखी है वो अच्छे से डाटा को कलेक्ट कर लाएगा। ठीक है, उसे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ट्रेनिंग में उसको सब कुछ सिखा दिया जाता है कि ऐसी ऐसे केसेस आपके सामने आएंगे तो उनका डाटा आपको कैसे कलेक्ट करना है। इफ़ दे आर नॉट ट्रेन टू मेक दैम एक्सपर्ट इन देयर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर उनको ट्रेनिंग नहीं दिलाई गई है और ऐसे ही कह दिया गया है कि जाइए आप, यू आर इन्वेस्टिगेटर एंड कलेक्ट ऑल द डाटा फ्रॉम द पीपल, देन सैम्पल विल लैक रिलायबल। तो जो भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करके लाएंगे उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, फिर उनकी डाटा पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, कम विश्वास करेंगे, क्योंकि वो 100% करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ओके, करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। These are the four factors on which the reliability of samples are we believe. Okay, ठीक है, these are the four factors. First size, second first is your size, second is your sample, bias of corresponders and enumerators, and fourth is your training of enumerators. I hope you are understanding, children. I become bilingual so that my student can understand the concept very well. Now next point, सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। अभी हमने क्या किया बेटा, अभी वी हैव स्टार्टेड अबाउट द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सैम्पल मेथड्स एंड योर सेंसस मेथड। ठीक है, सेंसस के बारे में हमने स्टडी किया था। ठीक है, सेंसस के बारे में हमने स्टडी किया था। और सेंसस का मतलब क्या, पूरी पॉपुलेशन। सैंपल का देखिए, अब मैं शॉर्ट में रिवीजन करा देती हूँ आपका इसमें।
ठीक है, जब हम सेंसस की स्टडी करते हैं, सेंसस का मतलब होल पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है, पूरे पॉपुलेशन। अब हम सैंपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हमने सैंपल की बात करी, ठीक है। सैंपल की बात करते समय हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आपका जो कवरेज है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज योर कंपैरेटिव स्टडी वी आर डूइंग, द फर्स्ट पॉइंट इज योर कवरेज, व्हाट, फर्स्ट पॉइंट इज योर कवरेज, COVERAG। इस कवरेज का मतलब क्या है, इन द सेंसस टेक्निक एंड इन्वेस्टिगेटर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन। अब इस कवरेज में क्या है, हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या में हर तरीके के लोग हैं, और इन्वेस्टिगेटर्स सेंसस टेक्निक से सभी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमने सेंसस के बारे में पढ़ लिया। अब कंपैरेटिव स्टडी चल रही है, तो कंपैरेटिव स्टडी में सैंपल मेथड आपका क्या होगा, ऑन द अदर हैंड ओनली सम ऑफ द आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड कवर्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी में हम क्या देखेंगे, कंपैरेटिव स्टडी में हम देखेंगे कि कवरेज में, ठीक है, पूरे यूनिवर्स सैंपल्स में क्या हुआ, कुछ आइटम्स का सिलेक्शन कर लिया इन्वेस्टिगेटर्स ने और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर सूटेबिलिटी, ठीक है। सेंसस मेथड की सूटेबिलिटी आपकी क्या होगी, सेंसस मेथड इज सूटेबल व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स इज स्मॉल। जब हम छोटी जनसंख्या, जब स्मॉल पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही होगी। ऑन द अदर हैंड व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, जब हम ज़्यादा की कर रहे हैं तो सैम्पलिंग मेथड विल बी यूज, ठीक है। सेंसस में हमने कम जनसंख्या वाले लोग का रिकॉर्ड मेंटेन किया तो सही होगी, और सैंपल में हम क्या करते हैं, बड़ी जनसंख्या को सेलेक्ट करते हैं। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ सूटेबिलिटी, कंपैरिजन स्टडी बिटवीन द सेंसस एंड योर सैंपल मेथड। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब बिल्कुल सही रिजल्ट देने वाला। दिस इज जनरली अ ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द रिजल्ट बेस। सेंसस के बेस पर स्मॉल साइज लिया तो बिल्कुल सही रिजल्ट निकल का है देन सैम्पलिंग मेथड, क्योंकि सैंपल में तो टोटल में से कुछ आइटम्स चुन लिए जाते हैं ना, तो ये रीज़न रहता है। दिस इज बिकॉज द सेंसस मेथड ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड, एज अगेंस्ट इट देयर लेस एक्यूरेसी, लेस एक्यूरेसी रहती है रिलायबिलिटी इन द सैम्पलिंग मेथड बिकॉज इट स्टडीज ओनली अ फ्यू आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि ये फ्यू आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन करता है। हाउएवर, सॉरी, however errors can be detected and removed in the sampling because of some a small number of items, ठीक है। जब स्मॉल आइटम पूरे में से कुछ का सिलेक्शन किया सैंपल के अंदर, तो कुछ गलतियां होती हैं, तो उनको हम आसानी से निकाल भी सकते हैं। टू दैट एक्सटेंड सैम्पलिंग मेथड शोज ग्रेटर एक्यूरेसी। अगर हम एक्सटेंड सैम्पलिंग मेथड से क्या देखते हैं, तो उसमें ग्रेटर एक्यूरेसी निकल कर आती है एज कम्पेयर टू सेंसस मेथड। अभी हम कॉस्ट की बात करते हैं बेटा। कॉस्ट का मतलब कीमत, ओके, कितना पैसा खर्च होता है सेंसस मेथड में और सैम्पलिंग मेथड में। सैम्पल मेथड इज सर्टेनली मच लेस, सैंपल में कुछ पे स्टडी की जाती है तो कम पैसे खर्च होते हैं, सेंसस में सभी लोगों के ऊपर इंफॉर्मेशन, तो उसमें ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। सो इट सैम्पलिंग मेथड इज much less expensive than census method. Smaller the sample size, जब जितना छोटा साइज होगा सैंपल पॉपुलेशन, लेस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कम लोगों का होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं एक फैमिली का, ठीक है। फैमिली में कम मेंबर्स हैं तो खर्चा कम होगा, अगर ज़्यादा मेंबर्स हैं तो खर्चा भी ज़्यादा ही रहेगा। टाइम, टाइम मीन्स समय, ओके। सैंपल मेथड इज़ लेस टाइम, सैंपल मेथड में हमें क्या कम टाइम लगता है, और सेंसस मेथड में ज़्यादा टाइम लगता है। कंपैरेटिव स्टडी वी आर डूइंग।
Now your nature of items. Nature of items. Census method is particularly suitable when the items of population have diverse characteristics. नेचर ऑफ आइटम से हम क्या देखेंगे, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, मेल हैं, फीमेल हैं, ठीक है, एज ग्रुप अलग हैं इनके, मेल के फीमेल के, बच्चे हैं इसमें, बूढ़े हैं, यंग हैं, ठीक है, इनकी फूड हैबिट्स अलग है, इनकी ड्रेसिंग सेंस अलग है, इनका ऑक्यूपेशन अलग है, ठीक है, इनके प्रोफेशंस अलग अलग हैं, अलग अलग फील्ड में सभी तरीके से काम करते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी डाइवर्स कार, सबकी चीज़ें सबसे अलग अलग है, लोग एक जैसे हैं बट काम अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग आदत हैबिट्स को एडॉप्ट किए हुए हैं। ऑन द अदर हैंड सैम्पल मेथड इज सूटेबल, हम क्या देखते हैं, आपका सैम्पल मेथड सूटेबल है व्हेन आइटम्स इन द पॉपुलेशन आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है एक जैसे हैं सभी, ठीक है, मैन सारे एक जैसे हैं, फीमेल सारी एक जैसी हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों। नाउ योर सेवेंथ पॉइंट इज योर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मीन्स जांच पड़ताल करना, ठीक है, वेरीफाई करना कि बिल्कुल सही चीज़ें हैं या नहीं। वेरिफिकेशन ऑफ स्टैटिकल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू द सेंसस, हम क्या देखते हैं, सेंसस में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, डाटा कलेक्ट कर दिया, इज जनरली नॉट पॉसिबल, ठीक है, सेंसस में हम ज़्यादा, क्योंकि हर एक के घर थोड़ी जाया जाएगा, इट वुड इन्वॉल्व ह्यूज एक्सपेंसेस, अगर हम विश्व के अंदर जितने भी लोग हैं सबके घर पे जाएंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स में, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉस्ट होते हैं वो भी बियर करने पड़ते हैं, एंड द रिपीटेशन ऑफ द होल प्रोसेस, ठीक है, और होल प्रोसेस का रिपीटेशन बार बार करना, एक बार करके देख लिया फिर वही दोबारा से करना, दिस इज द रिपीटेशन। Now sample information on the other hand, sample information on the other hand can be easily verified, ये क्या है, easily verified रहेगा in case of doubt, doubt में enumerators कैन बी डन अगेन, ठीक है, फिर अगर किसी डाटा में हमें संदेह रहता है तो हम क्या करते हैं, उस डाउट को क्लियर करने के लिए फिर हम डाटा को दोबारा से रिकलेक्ट करते हैं, ताकि फैक्ट्स वेरीफाइड अकॉर्डिंगली, ताकि फैक्ट्स बिल्कुल सही निकल कर आ जाएं। ओके, ये तो हमारे पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं। दिस इज द कंपेरेटिव स्टडी वी हैव डन बिटवीन द सेंसस मेथड एंड द सैम्पल मेथड्स पॉइंट्स वाइज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, in short, sample method of statistical investigation is generally preferred to the census. Census में पूरे यूनिवर्स की स्टडी की जा रही है, बिकॉज द फॉर्मर इज लेस एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व, ठीक है, जब हम सबके स्टडी करने के लिए जाएंगे तो टाइम भी ज़्यादा चाहिए, मनी भी ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा एनर्जी भी लगानी पड़ेगी हमें, तभी हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन आएगी। हाउएवर फॉर द सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ द सैम्पल मेथड में हम क्या करते हैं, सेंसस में से कुछ आइटम्स का स्टडी करेंगे और उसके बेस पर रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, जो कि हम आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से समझा चुके हैं और शॉर्ट में जस्ट नाउ अभी हमने आपको समझा दिया। Now it is very essential that sample item represent the characteristics of the population as a whole. जो भी सैंपल की स्टडी की जाती है, ठीक है, सैंपल की स्टडी पे ये सारे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं, उनके बेस पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द सेंसस स्टडी एंड योर सैंपल
study points wise we have studied. Okay, from the economical point of view we have studied, from the time points of we have studied, from the efforts points of view we have studied. I hope you understand this chapter very nicely about the census method and your sample method of data of collection of data. This is very, keep my videos watching regularly to understand the concepts. I hope you all will be fine at your home. Stay home and stay blessed. God bless you. This chapter is over, lesson 3. Now, uh, have a nice day ahead. Thank you.